Hello students, how are you? Here Shilpi Saini from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our lesson The Bond of Love, Lesson 9 by Kenneth Ederson. Clear class? In this lesson you will see this is the story of love and affection between a human being and animal. You will see a bond of love between human being and animal. Once the narrator finds an orphaned sloth bear and gifted him to his wife. As the time passes, the narrator's wife and the baby bear share a great bond of love and affection. The bear grows big and needs an open and big space to live. Okay, so they decide to give him to a Jew. But both of them cannot bear the separation. Both of them. Okay. They worry and do not eat food properly. Hence, the bear is brought back to the narrator's house and both become happy. Okay, finally they just live together. Okay, now we'll start the text. Okay, open your book and pay attention. I'll begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. तो यहाँ पर जो अथर है वो यूँ कह रहा है कि मैंने ब्रूनो के साथ लेसन शुरू करते हुए कहता है कि मैंने इसको एक्सीडेंटली हासिल किया और ये मेरी वाइफ के लिए, ठीक है, उसको गिफ्ट करने के लिए. कैसे एक्सीडेंटली हासिल किया? हाउ डिड ही जस्ट गेट दैट बियर? 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. Okay, near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. Painting means taking short, quick breaths. Clear? तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2 साल पहले जब अथर अपने शुगर कैन फील्ड से अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, तब देखता है कि कुछ लोग हैं वहाँ पर जो कि वाइल्ड पिग्स को खेत से भगा रहे थे. तो उसमें से तो कुछ भाग गए, कुछ रह गए, और उसी में एक्सीडेंटली यहाँ पर एक जो है उसने देखा कि एक स्लॉट बियर है जो कि वहाँ पे आया सामने और वो हाफ रहा था. ठीक है. Now I will not shoot a sloth bear wantingly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. फिर क्या होता है कि जो मतलब एक जो बियर सामने आया तो मैंने तो उसको नहीं मारा. वांटिंगली मीन्स फॉर नो गुड रीज़न. लेकिन क्या होता है, जो वो पुअर बीस्ट रहता है, हमारा एक कंपेनियन उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता है. कंपेनियन मीन्स फ्रेंड. क्लियर? तो वो जो है उसको शूट कर देता है अचानक से. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back. When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent, making a pitiable noise. फिर इन लोगों ने क्या देखा, सरप्राइज हो जाते. दे ऑल वर सरप्राइज टू सी दैट कि एक ब्लैक फर जो है उसकी बॉडी से रिमूव हो रहा है, हट रहा है. प्रोस्ट्रेट मीन्स लेइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, मतलब फर्श पे पड़ा हुआ. तो उस तरीके से जो वो मदर बियर थी वो जो है ज़मीन पर वहाँ पर ऐसे गिर गई क्योंकि वो मर चुकी थी. ठीक है, तो उसकी बॉडी से कुछ अलग हुआ और जब देखा गया, नोटिस किया गया, तो वो क्या था, बेबी बियर था जो कि उससे अलग हो गया और मदर बियर मर चुकी थी. ठीक है, और वो जो लिटिल क्रिएचर था वो एक बेबी मदर बियर के चारों तरफ वो घूमने लगा और एक सोरोफुल और पिटिबल जो है साउंड प्रोड्यूस करने लगा. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur. Okay, we have done it. I ran up. I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field, following
it with my companion. I was at last able to grab it by the scruff of its neck. Okay, scruff of its neck means take hold of the back of the neck. Okay, back of the neck or collar suddenly and roughly, while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. अभी कह रहा है कि ये जो है इसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, स्कूटेड मीन्स वो आगे भाग गया फिर शुगर केन के फील्ड में। फिर इसके और इसके फ्रेंड्स ने काफ़ी कोशिश करी, फिर फाइनली ये उसको उसकी गर्दन से, उसके नेक से, बैक पोर्शन के से उसको पकड़ने में सक्सेस रहा और उसको जो है पकड़ लेता है। जब ये उसके ऊपर काफ़ी कोशिश करता है स्क्रैच करने की भी, ठीक है। We put it in one of gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it, named it. Christened it means named it Bruno. क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है अथर क्या करता है, ये उसको उसके बैग में, गनी बैग में, एक तरीके का जूट बैग होता है, उसमें डाल देता है। और जब ये बेंगलोर आता है तो अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है, वो बहुत खुश हो जाती है और इसके गले में वो एक जो है ना रिबन बांध देती है। और आप कुछ समय के बाद जब उसको ये पता चलता है कि ये बेबी बॉय है तो क्रिश्चियन मीन्स नेम रखना, तो वो जो है उसका नेम रखती है ब्रूनो। ब्रूनो soon took a drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else, and everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meats, curry and rice regardless of condiments, and chilies, bread, egg, chocolate, sweets, porridge, आइसक्रीम etc। फिर क्या होता है कि जल्दी ही ब्रूनो जो है मिल्क वगैरह पीने लग जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको कुछ स्टेप और अगर आगे हम बढ़ें तो फिर वो हर चीज़ खाने लग जाता है, हर वो चीज़ जो कि उसके घर में खाई जाती है, जो कि अभी हमने नाम लिया, द थिंग्स विच वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड, ही एट एवरीथिंग। ओके। As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish, great enjoyment, relish, great enjoyment। तो वो हर चीज़ इंजॉय करता था, जो अभी ईटेबल आइटम्स हमने डिस्कस किए लास्ट पेज पे वो भी, और ये सारी चीज़ें भी, लाइम जूस है, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्योर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग ही इंजॉयड। ओके। The bear became very attached to our two Alistian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds। फिर ये बता रहा है कि जो बियर है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है दो अलिस्टियन डॉग से। अलिस्टियन डॉग, अलिस्टियन एक ब्रीड होती है डॉग की, ठीक है, तो उनसे अटैच रहता है। और टीनेंट्स मतलब जो आपके किराएदारों के बच्चे हैं, रेंट पे जो रहते हैं उनके जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत अटैच हो जाता है, ठीक है, और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, खेलते हुए, किचन में, बेडरूम में, हर जगह वो जो है इंजॉय करता है उनके साथ। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। आई पुट डाउन पॉइजन to kill the rats and mice and had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me। फिर क्या होता है, इस ब्रूनो के साथ एक दिन एक इंसिडेंट हो जाता है। क्या इंसिडेंट होता है, अर्थात जो है ना बेरियम कार्बोनेट पॉइजन जो है रेड किलर, एज अ रेड किलर लाके अपनी लाइब्रेरी में रखता है। ब्रूनो लाइब्रेरी में आता है और वो उसे वहाँ पर खा लेता है और जिसकी वजह से उसे पैरालाइज हो जाता है। फिर वो अपनी बॉडी को ड्रैग करके अथर की वाइफ तक जाता है और फिर वहाँ पर वो जो है उसको बुलाती है तुरंत, ठीक है। आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड ऑफ, आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंट। फिर ये लोग इसको ले करके वेट्स के पास यानी कि डॉक्टर के पास जाते हैं। वेट्स मीन्स पशु चिकित्सक, डॉक्टर। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। और ये लोग सारी बात बता देते हैं कि पॉइजन केस है, बेरियम कार्बोनेट खा लिया, अब क्या करें।
Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say? Barium carbonate. Ah, yes. Barium salt or barium carbonate. Symptom paralysis. Treatment injection of just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपनी बुक खोलता है, फिर वो नेम सर्च करता है, नेम मिलने के बाद सिम्टम सर्च करता है कि इसे पैरालिसिस होता है, फिर इसका ट्रीटमेंट देखता है कि इसमें इंजेक्शन लगता है और वो अपना इंजेक्शन लाने जाता है. अ डैश बैक टू द कार. ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग about on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing, with having flanks and gaping mouth. Floundering means struggling to move, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होना. विद फिर ये टेकिंग डीप ब्रीथ. अब यहाँ पे हैवी ब्रीथिंग विद हैविंग, तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा कि टेकिंग डीप ब्रीथ. फ्लैंक्स मीन्स द साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड द हिप्स, तो जो बॉडी के साइड से वो धड़क रहे थे, पास से धड़कना जिसे हम कहते हैं. और गैपिंग मीन्स वाइड ओपन. तो ब्रूनो की हालत बहुत ख़राब थी, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी और उसके पास से धड़क रहे थे, उसका मुंह खुला हुआ था और वो तेज़ी से हाँफ रहा था. होल्ड हिम एवरीबडी, इट गोज hypodermic. Bruno squills. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, the condition unchanged. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less mysterious. Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. अब ये बता रहे हैं होल्ड हिम एवरीबडी, हर कोई पकड़ो. अब यहाँ पर हैपोड्रेमिक एक तरीके की लॉन्ग निडल होती है जो कि इंजेक्शन देने के लिए यूज़ की जाती है. वो जो है उसके अंदर 10 cc का जो एंटीडोट है वो फिल कर दिया गया है. एंटीडोट मेडिसिन, ठीक है, जो कि ली जाती है, आपको पता है, वो उसकी बॉडी में एंटर कर दी जाती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई असर नहीं आता. फिर दूसरा 10 cc का इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा कुछ फ़र्क आता है और ब्रूनो धीरे धीरे अपनी हाथ वगैरह अपने पैर वगैरह हिला सकता है और खड़ा होता है. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feat. Okay, he looks at us disdainfully, as much as to say, what is barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. अब 30 मिनट्स के बाद वो खड़ा हो जाता है और खाने के लिए कहता है और खाना खाता है और फिर वो डिसडेनफुली मतलब डिसअप्रूविंगली, कि बहुत ही निराशा से देखता है, डिसअप्रूव करते हुए देखता है और कहता है कि इतने बड़े बियर के लिए ये बेरियम कार्बोनेट क्या है, कुछ भी नहीं है. ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कहना चाह रहा हो और अभी भी वो खा रहा था. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the stump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. अब ये बता रहे हैं कि क्या हुआ एक बार, इसने जो है ना एक पुरानी स्टूडबेकर मतलब एन ओल्ड अमेरिकन कार, तो ओल्ड अमेरिकन कार स्टूडबेकर से इसने कुछ इंजन ऑयल निकाल लिया था. ठीक है, किस लिए निकाला? ताकि वो टर्माइट्स के अगेंस्ट, टर्माइट्स माने दीमक होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट इसको एज अ वेपन यानी कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर सके. ठीक है, और ब्रूनो जो है ना अचानक से उसको भी पी लेता है लेकिन इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता. The mother rolled on, and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the Celestian in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy. अभी बता रहे हैं कि समय बीतता गया, ब्रूनो साइज में बहुत बड़ा होता गया. एलेस्टियन डॉग जितना हो जाता है वो साइज में उससे भी बड़ा हम कह सकते हैं, और काफ़ी मिस्चीवियस, शरारती और प्लेफुल भी रहता है और बहुत इन्जॉय करता है मेरी वाइफ के साथ भी, मतलब वो वहाँ पर रहता है जो है उसके बच्चों के साथ, और उसके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है उनकी. और उसके लिए फिर एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका नाम है बाबा, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल बॉय. And he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble.
गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। फिर ये बता रहे हैं कि जो है बाबा जैसे कि ये जब सीखता है चीज़ों को कमांड करने लग जाता है, अगर इसको कोई कुछ कहता है कि बाबा रेसल आर कमांड, तो ये किसी को भी जो भी इसके आमने सामने आता है उसको टम्बल कर देता है, उसे पुश कर देता है। और अगर कोई कहता है बाबा होल्ड गन, और तो ये अपनी जो इसके पास स्टिक होती है तो वो उसको उसी तरह से पकड़ता है जैसे गन पकड़ी जाती है। आस्क हिम बाबा रेसल वेयर इज योर बेबी एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड क्रेडल अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant's children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. और अगर उससे यूँ पूछा जाए कि तुम्हारा बेबी कहाँ है, तो वो अपने जो है स्ट्रॉ बेड से निकाल करके, बहुत ही जिसको संभाल के रखता था, एक स्टंप को, लकड़ी का एक टुकड़ा निकाल करके उसको कार्डल मतलब एक अच्छी सी आवाज़ निकालते हुए अपने बेबी को प्रिटेंड करता कि ये मेरा बेबी है। लेकिन टीनेंट के बच्चों की वजह से उसको अब हमेशा चेन में रखना पड़ता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the Jew at Mysore. He was getting too big to keep at home. Sometime weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the Jew. Curator here means a person in charge of the Jew. फिर हमने क्या किया कि उसको कन्विंस करने की कोशिश की, और जब वो मान गई तो हमने बिना लेट किए एक लेटर लिखा कोरेटर को, ठीक है। और लेटर जब लिखा तो वो जो है तुरंत मान जाता है, ठीक है। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन। लेटर में क्या रहता है कि वो पूछा जाता है, तो उसका रिप्लाई रहता है येस, मैं चाहता हूँ। और जू में जो है जूस एक केस भेजता है मैसूर से लॉरी में, ठीक है। 18 माइल्स का डिस्टेंस रहता है, और बाबा को उसमें पैक करके भेज दिया जाता है। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। For the first few days, she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replied, well, but fretting he refuses food too. अब क्या था कि वो तो चला जाता है, बाकी घर में सब लोग ठीक रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती, सब कन्विंस रहते हैं कि नो इट इज़ गुड प्लेस फॉर बाबा। विच इज़ गुड प्लेस? द जू। ओके, लेकिन इसकी वाइफ परेशान रहती है, चिंतित रहती है, वरीड रहती है, फ्रेटेड रहती है, और वो खाना पीना बंद कर देती है। फिर वो लेटर लिखती है, लेटर में पूछती है कि बाबा कैसा है, तो जवाब आता है ठीक है, लेकिन वो भी परेशान है और खाना नहीं खा रहा है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ going to the Jew and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and said all the keepers at the Jew said that he was fretting. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I'll go myself, but bus or train. So I took her by car. फिर क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स घूमने जा रहे होते हैं मैसूर, तो ये अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है कि तुम देख के आना उसे। तो ये वहाँ जाकर जब देखते हैं तो आके बताते हैं कि वो काफ़ी वीक हो चुका है, दुखी है, और सभी कीपर्स कह रहे हैं कि वो परेशान रहता है। 3 मंथ्स तक तो उसने अपने आप को रोके रखा, रिस्ट्रेन मीन्स रोकना। लेकिन फिर उसके बाद कहती है कि या तो मुझे ले जाओ या तो फिर मैं जो है ट्रेन या बस से जाऊंगी, मिल के आऊंगी। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards away, some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He hauled with happiness. She ran up to him, petted her through the bars, and he stood on his head in delight. फिर क्या होता है, फ्रेंड्स कंजक्टेड मीन्स फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाय गेसिंग, गेस के अकॉर्डिंग एक ओपिनियन दिखाना। तो फ्रेंड्स ये गेस करते हैं कि वो तुम्हें नहीं पहचानेगा, और यही उसका हस्बैंड भी कहता है कि नहीं पहचानेगा। लेकिन जब ये उसे कुछ दूर पर ही रहती है वो उसे पहचान जाता है और खुशी से मतलब कि साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। वो उसके पास दौड़ के जाती है, बार बार मीन्स सलाखों के अंदर से ही वो उसको पेट करती है, उसको मतलब कि पेटेड मतलब उसको टच करती है। For the next 3 hours, she would not leave the cage. She gave him tea, lemon cakes, ice cream, and whatnot.
Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly, Baba cried bitterly, even the hardened curator and the keepers felt depressed. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next 3 आवर्स तक वो लोग बैठ के अच्छे से बातचीत किए, मतलब अच्छे से एक दूसरे को मतलब कि फील किए, बियर और उसकी वाइफ। ठीक है, फिर इसके बाद उसने क्या क्या दिया उसको, टी दिया, लेमन केक, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या दिया। लेकिन जब क्लोजिंग टाइम आया जू का, तो मेरी वाइफ जो है, ये कहता है वाइफ इसकी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, बाबा भी रोने लग जाता है, हर कोई वहाँ परेशान हो जाता है। हालांकि इसको पता था कि क्या होने वाला है। "Oh, please, sir," she asked the curator, "may I have my Baba back?" Hastily he answered, "Madam, he belongs to the Jew and he is government property now. I can't give away government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back." तो जब ये कहती है कि मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ, तो वो मना कर देता है और कहता है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मैं नहीं दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप सुपरिटेंडेंट जो कि बेंगलोर में है वो मान जाए तो आप ले जा सकते हो। There followed the return journey to Bangalore and a visit to Superintendent's Bangalore. A tearful pleading, "Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me?" He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a case for transporting the beer to Bangalore. अब क्या होता है कि ये वापस जाते हैं बैंगलोर, सुपरिटेंडेंट के बैंगलोर में, वहाँ पे जाके जो है उसे रिक्वेस्ट करते हैं और जो है रिक्वेस्ट के बाद जो है कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना बहुत परेशान हैं, हमें वापस जो है ये दे दो। और वो इस बात को मान जाता है, काइंड हार्टेड रहता है, और नहीं नहीं वो उसको एक लेटर भी लिखता है कि वो कोरेटर को दे दे, जिसमें ये लिखा रहता है कि इसको केस प्रोवाइड, इन लोगों को केस प्रोवाइड किया जाए ताकि बियर को आराम से ले जाया जा सके। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small case and hoisted on top of the car. The case was tied securely, and a slow and careful return journey to Bangalore was completed. It means accomplished means completed. फिर क्या होता है कि ये जो है मैसूर जाते हैं, लेटर देते हैं, वहाँ से बाबा को केस में जो है बैठाया जाता है और ये कार के ऊपर रख करके केस को सिक्योरिटी के साथ धीरे धीरे केयरफुल तरीके से वापस आते हैं बेंगलोर और वापस अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। Once home, a squad of coolies were engaged for a special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. फिर क्या होता है, जब ये एक बार घर आ जाते हैं, स्क्वाड मीन्स टीम, कूली की टीम जो है ना एंगेज की जाती है, एक कंपाउंड बनाया जाता है जो कि एक आइलैंड होता है, एक कंपाउंड में एक आइलैंड बनाया जाता है बाबा के लिए, जो कि 20 फीट लॉन्ग 15 फीट वाइड है और चारों तरफ से एक गहरे गड्ढे से जो कि 6 फीट वाइड और 7 फीट डीप है उससे घिरा हुआ रहता है। A wooden box that once held fowls was brought and put on the island for Baba to keep it at night. Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the garland stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the Jew, were put back for him to play with. अब एक बार जब ये आ जाते हैं तो एक वुडन बॉक्स जो कि पहले जो है ना मतलब हैंड्स वगैरह का हाउस था, फाउल्स का, उसको रखा जाता है बाबा के लिए ताकि वो रात में सो सके। वहाँ पर स्ट्रॉ वगैरह रख दिया जाता है उसके बेड को गर्म रखने के लिए, और जो है ना उसका बेबी जो, और वो जो गार्लैंड नारलैंड स्टम्प और उसके गन, ये सारी चीज़ें जो है संभाल के जो रखी गई रहती, जिनके साथ ये खेलता था वो सब संभाल के रखी जा चुकी थी, वो सब अब इसको दे दी जाती है और उसके पास खेलने के लिए उसको रख दिया जाता है। In a few days, the coolies hoisted the case onto the island, and Baba was released. He was delighted, standing on his hind legs. He pointed the gun and cuddled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. अब क्या होता है कि कूली को जो है उस कुछ ही मतलब कि इन अ फ्यू डेज द कूलीज हॉस्टेड द केज,
क्या होता है कि कूली जो है जब उसको बना लेते हैं तो केज को वहां रख देते हैं, वो भी अपने पिछले पैरों पे खड़ा होकर बहुत खुश रहता है, गन को पॉइंट करता है, बेबी को लेकर के आवाज प्रोड्यूस करता है। मेरी वाइफ उसके साथ काफी लंबा समय वहां बिताती है अच्छे से। और वो क्या होता है कि 15 मंथ्स जो है ना, ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, वो 15 मंथ्स का हो जाता है लेकिन काफी भारी रहता है। The way my baby reaches the island and leaves it is interesting. I have tried a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop of its at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6 foot gap and constitute the wide of the surrounding pit. फिर ये बता रही है कि बताते हैं कि किस तरीके से उसकी वाइफ वहां पर उस आइलैंड तक पहुंचती थी, क्योंकि वो बीच में एक गहरा गड्ढा था ना, ठीक है। तो वहां पर एक आम का जो है पेड़ था, ठीक है, वहां से वो एक जो है रोप बांध देता है और उसके अंदर लूप बना देता है, जिसमें वो पैर अपना रख करके पिछले पैर से पुश करते हुए आगे बढ़ती है और इस तरीके से वो आगे जाती थी। और इसी तरीके से वो रिटर्न भी होती है। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, वापस भी ऐसे ही आती थी। But who can say now that a sloth bear had no sense of affection, no memory, and no individual characteristics? अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन कह सकता है कि स्लॉथ बियर के पास कोई अफेक्शन नहीं है या मेमोरी नहीं है या कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही बॉन्ड ऑफ लव को समझता है। जो एनिमल्स के अंदर भी फीलिंग्स होती है, एनिमल के अंदर भी अफेक्शंस होता है, कैरेक्टर उसके अपने भी कैरेक्टर स्केचेस होते हैं, ठीक है। तो इस लेसन में हमने यही देखा क्लास। आई थिंक द लेसन इज क्लियर। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, in our next online class, we will just discuss the doubts of this lesson. Get ready with your doubts class. Okay, you will have to do the summary if you have not written, okay, and NCERT questions. This is your homework.